زیادہ لوگوں نے انتظار کیا، اور اب میں اس انتظار کو ختم کرتا ہوں عرفان مرتضیٰ صاحب کے لیے. بہت ہی سینئر، بہت ہی اچھے منجم شاعر ہیں جناب عرفان مرتضیٰ صاحب. لاس اینجلس کیلیفورنیا میں ہوتے ہیں. ان کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پر ہے موجود اس وقت. مجھے نہیں پتا کہ یہ لاس اینجلس میں ہی ہے. دیوار ان کی پیچھے نظر آ رہی ہے، اس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ دبئی میں بیٹھے ہیں. ویسے فلائٹس بند ہے تو ہوں گے تو یہی نہیں، یہی ہوں میں، یہی بند ہوں. یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اور شاعری میں ان کا ایک نام ہے جیسے باقی اور شعراء کا نام ہے. مجھے کاش میں پس اور ٹائم ہوتا تو میں لوگوں کو اور ٹائم دیتا. اتنے مختصر تو نہیں، کافی ٹائم لگا لوگوں کے لیے، مگر بہت لوگوں نے انجوائے کیا. 5 کتابیں عرفان صاحب کی شائع ہو چکی ہیں. پرانے گھر کے موسم، چندہ، تصویریں، دھنک کے رنگ اور تم، سلگتی ریت پر سجدہ. عرفان مرتضیٰ صاحب اردو شاعری کے میدان میں کسی تعریف کے محتاج نہیں. آپ ایک منجھے ہوئے ادیب، شاعر اور آرٹسٹ ہیں. ان کی پینٹنگز میں نے خود دیکھی ہیں ایگزیبیشن ہالز میں. بہت عمدہ مصوری بھی کرتے ہیں. ان کا تعلق پاکستان کے ہر دل عزیز شہر کراچی سے ہے. آپ پچھلے 34 سال سے امریکہ میں رہائش پذیر ہیں اور قریباً 32 سال سے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. عرفان مرتضیٰ صاحب کی شہرت کے اسباب میں ان کی شہرہ آفاق نظمیں، پرانے گھر کے موسم، جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا، یہ بہت عمدہ ہے. اور تقریباً ہر 14 اگست کو جو بھی یہاں پر بڑے بڑے لاس اینجلس میں پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں ان کو آڈینس ہزاروں لوگ جو ہیں ان کو اس کو پڑھنے کے لیے ضرور کہتے ہیں. اور خالی اشعار نہیں، ان کا ایک انداز ہے جو ان کے پڑھنے کا انداز ہے، بالکل منفرد ہے. وہ آڈینس کو جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے. آپ دوسرا ہے، اب بھی ایسا ہوتا ہوگا شامل ہے. آپ صدر اردو رائٹرز سوسائٹی شمالی امریکہ کی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے ہیں. بہت سی تعلیمیوں کے ساتھ ان کا ایک شعر ہے، مجھ کو اوقات یاد دلانے کے لیے، مجھ کو اوقات میری یاد دلانے کے لیے، روز ہوتی ہے میرے دل پہ خدا کی. بہت سی تعلیمیوں کے ساتھ جناب عرفان مرتضیٰ. نوازش بابا نثار، بہت بہت شکریہ، اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ. آج کئی نئے لوگوں کو سننے کا موقع ملا اور بہت اچھا لگا. پاسبان ادب کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور آپ نے جو اتنا تعارف کروا دیا تو آدھا وقت وہاں سے نکل گیا میرا. آپ کے لیے ساری شام باقی ہے. ارے نہیں سر، نہیں سر، نہیں. ایک چھوٹی سی نظم. اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں ایک چمیکے والا ایریا ہے، اور چمیکے والا میں ایک چھوٹی سی خوبصورت سی جھیل میں نے دیکھی، اور اس کے اطراف میں چاروں طرف سبزہ تھا، اور جھیل کے بالکل درمیان کوئی 4-5 پیڑ لگے ہوئے تھے بالکل پانی کے درمیان، لیکن ان پیڑوں پہ ایک بھی پتا نہیں تھا. تو وہ پیڑ دیکھ کے ایک نظم ہوئی، اور عنوان ہے پیاسا پیڑ. سوکھے ہوئے تھے پیڑ جو پانی کے درمیان، واہ کیا کہنے، پیاسا پیڑ. دیکھا تو ان کو دیکھ کر یہ سوچتا رہا، میں بھی تو سوکھا پیڑ ہوں پانی کے درمیان. سب کچھ ملا ہے مجھ کو مگر کچھ نہیں ملا، میری کسی بھی شاخ پر پتا نہیں کھلا. یہ لگ رہا ہے کہ جیسے رب جلیل نے ایسی سزائیں دی ہیں کہ اب ساری عمر میں پانی کے درمیان بھی پیاسا کھڑا رہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک غزل کے چند اشعار کہ کھلتے ہوئے گلاب کے مانند شخص ہوں، کھلتے ہوئے گلاب کے مانند شخص ہوں، میں تو کھلی کتاب کے مانند شخص ہوں. واہ واہ. کھلتے ہوئے، بہت شکریہ. کھلتے ہوئے گلاب کے، نوازش، کھلتے ہوئے گلاب کے مانند شخص ہوں، میں تو کھلی کتاب کے مانند شخص ہوں. اترا کسی بھی قسم کے سانچے میں ڈھل گیا،
वाह उतरा किसी भी किस्म के क्या सांचे कहने? में, ढल गया, लगता है जैसे ढल गया। आग के मानिंद शख्स हूँ, वाह क्या वाह बात है। लगता है जैसे वाह। आग के मानिंद शख्स हूँ। माना वो एक सवाल के मानिंद शख्स है, माना वो एक सवाल के मानिंद शख्स है, पर मैं भी एक जवाब के मानिंद शख्स हूँ। क्या वाह। बात। और वो तो समंदरों से भी गहरा है, और मैं वो तो समंदरों से भी गहरा है, और मैं शायद बस एक चनाब के मानिंद शख्स हूँ। वाह। और जिस मुझको समझ रहे हैं वो सुलझा हुआ, मगर बाबा निसार, मुझको समझ रहे हैं वो सुलझा हुआ, मगर उलझे हुए हिसाब के मानिंद शख्स हूँ। उलझे हुए वाह हिसाब बहुत उम्दा। के वो मुझको समझ रहे हैं वो सुलझा हुआ, मगर उलझे हुए हिसाब के मानिंद शख्स हूँ। और वो अच्छा शख्स, है, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, और वो शख्स मेरे वास्ते सूरज है और मैं, वो शख्स मेरे वास्ते सूरज है और मैं बस एक माहताब के मानिंद शख्स हूँ। बस एक माहताब के। बहुत शुक्रिया। और एक और गजल के चंद अशार, और उसके बाद इजाजत चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत हो गया है कि नजर में नए कुछ जाविये उगने लगे हैं। वाह। नए कुछ जाविये उगने लगे हैं, नजर में आईने उगने लगे हैं। क्या बात है। नजर में आईने उगने लगे हैं, और फलक भी अब मेरी जागीर होगा, फलक भी अब मेरी जागीर होगा, कि पर अब सोच के उगने लगे हैं। सोच के उगने लगे। वाह क्या फलक भी अब मेरी जागीर होगा, कि पर अब सोच के उगने लगे हैं। और है कि सफर करना तो वाजिब हो गया, सफर करना तो वाजिब हो गया, सफर करना तो वाजिब हो गया है, यहाँ अब रास्ते उगने लगे। वाह वाह मुकर्रर जनाब, बहुत उम्दा। सफर करना तो वाजिब हो गया है, यहाँ अब रास्ते उगने लगे हैं। और मेरे बहुत शुक्रिया, मेरे हाथों में जितने हाशिए थे, मेरे हाथों में जितने हाशिए थे, अब उतने दायरे उगने लगे। क्या बात। मेरे हाथों में जितने हाशिए थे, अब उतने दायरे उगने लगे हैं, और न होंगे खत्म शायद जिंदगी भर, न होंगे खत्म शायद जिंदगी भर, यहाँ वो सिलसिले उगने लगे। न होंगे खत्म शायद जिंदगी भर, यहाँ वो सिलसिले उगने लगे हैं। और बहुत ही दूर जाकर बस गई हो। क्या बात है। बहुत ही दूर जाकर बस गई। क्या बात है, उम्दा। बहुत ही दूर जाकर बस गई, जभी तो फासले उगने लगे। क्या बात है, क्या बात है। मुकर्रर दूर जाकर बस गई हो। बहुत शुक्रिया। बहुत ही दूर जाकर बस गई हो, जभी तो फासले उगने लगे हैं। और कलम कागज पे मैंने रख दिया तो, कलम कागज पे मैंने रख दिया, गजल में काफिये उगने लगे। क्या बात है जी, क्या बात है। सुभान अल्लाह। कलम कागज पे मैंने रख दिया तो, बहुत शुक्रिया। कलम कागज पे मैंने रख दिया तो, गजल में काफिये उगने लगे हैं। हथेली पर तो मेरी उलझनों के, हथेली पर तो मेरी उलझनों के धड़ाधड़ हाशिए उगने लगे हैं। क्या बात है, क्या बात। हथेली पर तो मेरी धड़ाधड़ फलक, अब सफर करना तो वाजिब हो गया है, यहाँ अब रास्ते उगने लगे हैं। और अगर इजाजत हो मैं एक गजल के चंद अशार और पेश कर दूं। फलक से फिर न टकराए मेरा सर, देख लेता हूँ। सो मैं जब पाँव फैलाता हूँ चादर, देख लेता हूँ। वाह। फलक से फिर न टकराए मेरा सर, देख लेता हूँ। सो मैं जब पाँव फैलाता हूँ चादर, देख लेता हूँ। और उतर आता है मुझ में जब भी मौसम एहतसाबी का, उतर आता है मुझ में जब भी मौसम एहतसाबी का।
लगा कर एक दो इल्जाम खुद पर देख लेता हूँ। उतर आता है मुझ में जब भी मौसम एहतसाबी का, लगा कर एक दो इल्जाम खुद पर देख लेता हूँ। अब भला मैं इसे सुनिएगा, ये ताली आप समझ हो सकता है उसमें कि भला मैं क्यों नजर डालूं धनक के चंद रंगों पर, क्या बात, भला मैं क्यों नजर डालूं धनक के अशरफ साहब, भला मैं क्यों नजर डालूं धनक के चंद रंगों पर, ये सारे रंग तो मैं अपने अंदर देख लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, मुकर्रर जनाब, बहुत उम्दा। भला मैं क्यों नजर डालूं धनक के चंद रंगों पर, ये सारे रंग तो मैं अपने अंदर देख लेता हूँ। शेर है कि तुम्हारी सोच की गहराई पर लिखने से पहले मैं, तुम्हारी सोच की गहराई पर लिखने से पहले मैं चला जाता हूँ साहिल पर, समुंदर देख लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात भाई, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी सोच की गहराई पर लिखने से पहले मैं चला जाता हूँ साहिल पर, समुंदर देख लेता हूँ। और उदासी का कोई मंजर भला मैं किस लिए देखूं, उदासी का कोई मंजर भला मैं किस लिए कि अपने घर के हर दीवार और दर देख लेता हूँ। उदासी का कोई मंजर भला मैं किस लिए देखूं कि अपने घर की हर दीवार और दर देख लेता हूँ। और जब अपनी जात के अंदर घुटन महसूस होती है, जब अपनी जात के अंदर घुटन महसूस होती है, तो अपनी जात से बाहर निकल कर देख लेता हूं। घुटन महसूस होती है तो अपनी जात से बाहर निकल कर देख लेता हूँ। और एक उत्तर है कि तुम्हारी सोच की गहराई पर लिखने से पहले मैं चला जाता हूँ साहिल पर, समुंदर देख लेता हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात इंतजार करने का फायदा हुआ। नवाज। इरफान भाई, आपको जो भी था क्या थोड़ा था उसके बगैर नहीं छोड़ेंगे। हम तो तीनों नज़म के बगैर नहीं छोड़ेंगे। अरे अल्लाह, नहीं ऐसे नहीं जान छोड़ेगी। नहीं सब भाग जाएंगे। एक नजर के दो चार अशआर सामने आ गए, वो देख लें, फिर मैं पेश करता हूँ। जी। किसी शब तुम दुआए इस्तिखारा पढ़ के सो जाना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। किसी शब तुम दुआए इस्तिखारा पढ़ के सो जाना, मुझे तुम मांगना और पंज पारा पढ़ के सो जाना। क्या बात है। किसी शब तुम दुआए इस्तिखारा पढ़ के सो जाना, मुझे तुम मांगना और पंज पारा पढ़ के सो जाना। और तुम्हारी सोच के आंगन में जब गहरा अंधेरा हो, वाह क्या बात, तुम्हारी सोच के आंगन में जब गहरा अंधेरा हो, सरे शब तुम फकत एक किस्त आरा पढ़ के सो जाना। सरे शब तुम फकत एक किस्त आरा और भयानक ख्वाब देखो और तुम्हारी आंख खुल जाए। भयानक ख्वाब देखो और तुम्हारी आंख खुल जाए। बस तुम आयतल कुर्सी दोबारा पढ़ के सो जाना। क्या मशवरे आपने कमाल कर दिया। भयानक ख्वाब देखो और तुम्हारी आंख खुल जाए, तो बस तुम आयतल कुर्सी दोबारा, और दुआएं एक पर्चे पर तुम्हें लिखकर मैं भेजूंगा। क्या बात है। दुआएं एक पर्चे पर तुम्हें लिखकर मैं भेजूंगा। दुआओं का वो पर्चा तुम भी सारा पढ़ के सो जाना। दुआओं का वो पर्चा तुम भी सारा पढ़ के सो जाना। और ये शेर सुनिए साहब, कि तुम्हारे बिन तो सारी शब मेरी कटती है आंखों में। वाह क्या बात। तुम्हारे बिन तो सारी शब मेरी कटती है आंखों में, कि आदत थी मुझे चेहरा तुम्हारा पढ़ के सो जाना। तुम्हारे बिन तो सारी शब मेरी कटती है आंखों में, कि आदत थी मुझे चेहरा तुम्हारा पढ़ के सो जाना। न पढ़ना तुम हथेली की लकीरों में जो लिखा है,
न पढ़ना तुम हथेली की लकीरों में जो लिखा है, फलक पर बस मुकद्दर का सितारा। पढ़ के क्या बात है, क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और आखिर में मैं, आपका हुक्म है तो वो नज़्में इतनी बार पढ़ चुका हूँ और इसके कई कई मिलियन हिट्स हैं, और मैं आपको आखिर में वो पेश कर देता हूँ, फिर इजाजत। जो भी था क्या थोड़ा था, ये सब आप सबकी नज़्म। इरशाद। अपने देश को रोते भी हो, चैन से पढ़कर सोते भी हो, अपने देश को रोते भी हो, चैन से पढ़कर सोते भी हो, तुमको देश का गम कैसा है, हंसते भी हो रोते भी हो। किसने कहा था आओ यहाँ, आकर तुम बस जाओ यहाँ। जब देश तुम्हारा अपना था, वो शहर तुम्हारा अपना था, वो गली तुम्हारी अपनी थी, वो मकान पुराना अपना था, उस देश को फिर क्यों छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था, अरे जो भी था क्या थोड़ा था। क्या बात है, क्या बात है। और जब भी देसी मिलकर बैठे किस्से फिर चढ़ जाते हैं, उन टूटी सड़कों के किस्से, उन गंदी गलियों के किस्से, उन गलियों में फिरने वाले उन सारे बच्चों के किस्से, नुक्कड़ वाले दरवाजे पर टाट के उस पर्दे के किस्से, उस पर्दे के पीछे बैठी उस सलबेली नार के किस्से, जिसकी एक नजर को तरसे उन सारे लड़कों के किस्से। क्या बात। और औरंगिया को औरंगी के पानी के नलकों के किस्से, उन नलकों पर होने वाले उन सारे झगड़ों के किस्से, नुक्कड़ वाले दरवाजे पर टाट के उस पर्दे के किस्से, उस पर्दे के पीछे बैठी उस सलबेली नार के किस्से, क्या बात है। एक नजर को तरसे उन सारे लड़कों के किस्से, झूठे किस्से, सच्चे किस्से, प्यार भरे उस देश के किस्से, प्यार भरे उस देश को तुमने आखिर क्यों कर छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था, अरे जो भी था क्या थोड़ा था। क्या बात है, क्या बात है कि तुम फूले नहीं समाये थे जब एम्बेसी से आए थे, तुम फूले नहीं समाये थे जब एम्बेसी से आए थे, हर एक को वीजा दिखाते थे और साथ ये कहते जाते थे, चंद ही दिनों की बात है यारो, जब मैं वापस आऊंगा साथ में अपने ढेर से डॉलर और पत्ता भी लाऊंगा। तुमने कब ये सोचा होगा क्या क्या कुछ परदेश में होगा, अपने देश के होते सोते और वतन को रोते रोते, देश को तुम परदेश कहोगे और परदेश को देश कहोगे, देश को तुम इल्जाम भी दोगे, उल्टे सीधे नाम भी दोगे, अरे देश को तुम इल्जाम न दो, उल्टे सीधे नाम न दो, देश ने तुमको छोड़ा था या तुमने देश को छोड़ा था, क्यों मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था, अरे जो भी था क्या थोड़ा था, क्या थोड़ा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत मैंने इतनी दफा सुना है, लाइव आपको सुना है, वीडियो पे तो खैर सुनते हैं, लेकिन मुझे चूंकि मौका मिलता है लाइव सुनने का आपको, नवाज़ है मेरी खुशकिस्मती है। और जितनी दफा सुना मैंने उसको उसी तरह पहली दफा की तरह एंजॉय किया है। बहुत और इसकी उम्दगी जो है वो दिल पे जाके लगती है, स्पेशली जो लोग बाहर हैं। इरफान साहब आपने कमाल कर दिया है। नहीं बहुत शुक्रिया आपका, आप सब लोगों का, आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया, और आपने मुझे यहाँ मदऊ किया तो उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ।